हेलो। देखो यार, मैं ना बहुत सालों से वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ पैसों के लिए, पर दिस वीडियो, आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारी न्यू जनरेशन के लिए। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि तुमको कौन कौन सी बकचोदियां नहीं करनी है एक रिलेशनशिप में। मुस्ताद हो और ये हम सीखेंगे ऐसे मुश्किल से। इफ समवन सेज कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, शो देम दिस मूवी एंड प्रूव देम राइट। आई एम अज्यूमिंग you've already seen the movie, because यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। तो वी हैव अयान who loves Alize. Alize loves Ayan as a friend. So throughout the movie, Ayan is trying to catch Alize like a freaking Pokemon, but it doesn't work. So he gets sad, and then I don't know. Are we supposed to feel sad for him? Because I didn't feel anything after I finished the movie. And why did I not feel anything, you ask? Because right off the bat, they established that this movie is about two dumbasses. They have no problem with hooking up with random strangers. They're basically acting like swingers. If you don't know what I mean, just look it up. देखो बॉयफ्रेंड्स ना कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स। You cannot act all swingerish and then throughout the movie you're just crying saying, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी। I don't give a fuck. Alright, for the boys, we'll learn how not to be Ayan. So देखो, usually when a guy gets friend zoned by a girl who he has crush on, not always, but in most of the cases, they respect that. They respect that, लेकिन somewhere in the back of their head, उन्होंने पूरा सिनेरियो बना के रखा होता है कि एक दिन आएगा जब वो बहुत ज्यादा दुखी होगी, उसे रोने के लिए एक कंधे की जरूरत होगी और वो कंधा होगा मेरा। वो तुम्हारे कंधे पे सर रख के रो रही होगी और तुम बोलोगे कि यू डिजर्व बेटर फ्रेंड। और फिर रोते रोते उसका हेड धीरे से ऊपर उठेगा, तुम दोनों की आंखें मिलेगी और उसके बाद and there is nothing wrong with that. I mean, one can hope, and even if that actually happens, as long as it's consensual, it's, you know, good for you. But if you're actively trying to figure out a way to sleep with her, even though she clearly told you that, you know, you guys are just friends, तब तुम हरामी हो। किसी ने कभी आपको सड़नी चाटा मारा है? वो कुछ लोग नहीं होते जिसको उंगली दो तो वो हाथ पकड़ लेते हैं। अयान को भी अगर आप उंगली दोगे तो वो किस करना शुरू कर देगा। लेकिन अयान अकेला नहीं है, इस मूवी में ये मोहतरमा भी है, एंड फॉर सम रीजंस शी मैनेज्ड टू पिस मी ऑफ मोर देन अयान। सो राइट बिफोर क्लाइमैक्स, माइंड यू, अभी तक अयान अलीजे को फोर्सफुली किस करने की कोशिश कर चुका है। अलीजे उसको मना करती है, वो वहां से चला जाता है। अलीजे, बाय द वे, इट वाज सेक्सुअल हरासमेंट. Actually, it was sexual assault. Now, would she have reacted the same way if it was a stranger instead of Ayan? No, she would have called the cops, right? लेकिन वो अयान के लिए पुलिस कंप्लेन नहीं करती, क्योंकि you know, ये तो friendly level sexual assault था, stranger level sexual assault नहीं. By the way, it's not like they've been friends for years. वो अब एक दूसरे को, इस मूवी के हिसाब से, they've known each other for like 4 or 5 weeks. And after this friendly sexual assault, अयान अलीजे को कॉल करता है, and the first thing she says, मैं बस बहुत खुश हूँ कि तूने मुझे कॉल किया। basically in this movie she is desperate for his friendship, like उसको कोई और नहीं चाहिए। टेस्ट फ्रेंड। And when he calls her, this is the stupidest thing. अयान जब उसको कॉल करता है तो अलीजे उसका फोन देखती है, and then she starts rushing out of the club saying, काटो मत काटो मत काटो मत काटो मत। हेलो। you know, you can pick up the call and walk outside the club at the same time, right? What do you think will happen if he hears a little bit of noise in the background? हेलो। Too much noise, never calling her again. थर्ड एक्ट में अब उसको कैंसर हो चुका है और अयान ना जाके उसकी गोदी में मस्त बैठ जाता है, और इस टाइप का बिहेवियर तुमको थ्रू आउट द मूवी दिखेगा। ही इज लाइक ऑलवेज a little too close to her, and she has no problem with that. आ जाओ चाट करने। आजा। Now, तुम्हारा ओपन माइंडेड साइड इज गोना पॉप इन एंड से कि तो क्या हो गया भाई, दोस्त ही तो है, क्या हो गया, कोई बात हो गई क्या? चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अलीजे का डिवोर्स नहीं हुआ है, या तो फिर अलीजे की दूसरी शादी हो चुकी है, ठीक है, और समझ लो उसका हस्बैंड भी वहीं बैठा हुआ है। तो क्या अयान जाके उसकी गोदी में बैठता? और अगर बैठने की कोशिश भी करता तो क्या अलीजे उसको ऐसा करने देती? नहीं, राइट? क्यों? वो तो सिर्फ दोस्त है। अलीजे उसको नहीं बैठने देगी बिकॉज शी नोज दैट वुड मेक हर हस्बैंड सुपर अनकंफर्टेबल। और ये बात अलीजे को कैसे पता? बिकॉज शी हरसेल्फ गेट्स अनकंफर्टेबल व्हेन शी सीज सम गर्ल टॉकिंग टू हर हस्बैंड, और वो तो गोदी में भी नहीं बैठी है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि अलीजे का अभी हस्बैंड है या नहीं, नो नो, इट्स अबाउट उसे पता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डोंट डू विद जस्ट फ्रेंड्स।
हर किसी को इतनी फिजिकल क्लोजनेस का राइट नहीं होता है, स्पेशली समवन लाइक अयान। अलीजे को ऑलरेडी पता है कि वो क्या फील करता है उसके बारे में, बट स्टिल शी इज लाइक ओके यू कैन किस मी हियर, यू कैन किस मी हियर, तुम यहां भी किस कर सकते हो, यहां भी किस कर सकते हो, यहां भी किस कर सकते हो, यहां पे नो नो नो। और इस मूवी के फर्स्ट हाफ तक अलीजे ये एक्नॉलेज ही नहीं करती, लाइक शी जस्ट वोंट एक्सेप्ट कि अयान लव्स हर। वो जब अली के साथ चले जाती है तो अयान उसको बोल रहा होता है कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। सेक्स किया तुमने? सेक्स किया ना? और ये सुन के अलीजे बोलती है, हाँ बाबा, आई नो यू बीइंग प्रोटेक्टिव। डम एज प्रोटेक्टिव होता तो बोलता कि प्रोटेक्शन यूज करना, ही इज क्लियरली बीइंग जेलस यू डम। और उसकी शादी में अयान का गाना सुन के उसको समझ में आता है कि ओ ही लव्स मी। और ये उसको कैसे पता चला पता है? यू रेडी? क्योंकि उसके गाने में दर्द था। आज तुम्हारी आवाज में दर्द था। मैं तो उसके हस्बैंड अली का सोच रहा हूँ भाई। जब अयान उसकी शादी में आया होगा तो पूछा ही होगा ना कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। ओ यार हम दोनों एक पार्टी में मिले थे, हम दोनों काफी सैड थे उस दिन, तो वी डिसाइडेड टू हैव सेक्स, वी किस्ड, बट देन इट डिडंट वर्क आउट। और तब से हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स। और मैं अपने 1 महीने के बेस्ट फ्रेंड को शादी में तो बुलाऊंगी ही, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। डोंट बी अलीजे। एंड नाउ हाउ नॉट टू बी सबा। Sabah and her whole, oh, I'm gonna introduce my new boyfriend to my ex-husband. Why? Why would you do that? Why would anyone do that? तुम्हारा और तुम्हारे husband का divorce हो चुका है, तुम समझ लो कहीं बाहर ऐसे मिल गए, बातचीत हो गई, that makes sense, that's normal. But why would you take your new boyfriend to meet your husband who's clearly not over you? He is sniffing your hair like a freaking German Shepherd. एकदम कड़क माल। वो तेरे बाल सूंघ रहा था, थोड़ी देर में तेरा हाथ ऊपर करके तेरी बगल। Now, Ayan didn't love Sabah, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन what अगर उसका सबा का बॉयफ्रेंड एक्चुअली में उसको पसंद करता, तो वो उसके हस्बैंड की ऐसी, एक्स हस्बैंड की ऐसी हरकतें देख के वो क्या करता? दिस मूवी हैज अ मैसेज फॉर एवरीवन, लाइक तुम सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और अब अयान अपना बदला भी लेता है। अब वो अलीजे को बुलाता है सबा से मिलने, टू हैव द मोस्ट ऑकवर्ड डिनर ऑफ देयर लाइव्स। एक यूट्यूबर होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पता नहीं लोग कैसे जज करेंगे, लेकिन वो डिनर टेबल पे ना जाने के लिए अगर मुझे सोना भी पड़े ना, सो जाऊंगा। Alright, so this is it for today's video. Wait, can we talk about Sabah's house before we go? Because she has this Pinterest perfect house. It's lavish as hell in Vienna. It's huge and it's beautiful. What does she do for a living? She is an Urdu poet in Vienna. मतलब यूके होता तो समझ में भी आता। ऑस्ट्रिया में कितने उर्दू हिंदी स्पीकर्स है भाई? एक्चुअली आई वांट टू फाइंड आउट। ओके, गूगल के हिसाब से ऑस्ट्रिया में 0.3 से 0.4% हिंदी और उर्दू स्पीकर्स हैं। I mean, she reads to like 11 people. But her ex-husband is super rich, artist. इसलिए मेरे पास एक alimony joke था, लेकिन फिर तुम लोग बोलते कि Sexist remark, not appreciated. सब